Okay, so today we are focused on the part of removal of null protection and removal of unit protection, right? In last lecture, we already discussed what is the step we are used for removal of unit and removal of null protections, right? So we take a one example to understand how to remove the unit protection and how to remove the null protection, right? Unit protection removal is a very easy method. You substitute the values and find out the non-unit protections, right? So we take an example for this purpose again, right? Use the removal of unit protection. So before starting of unit protection, right, removal of unit protection, what is unit protection? Right, in last lecture, we already discussed what is the unit protection. We're talking about the non-terminal part, right? Non-terminal part means if we write the symbol A tends to B, right? We're talking non-terminal in right hand side. So this is unit protection, but we talking about the A tends to small a. So this is not a unit protection. Now, one more example, A tends to B and D. So this is not a unit protection. It's a combination of two non-terminal. So when we're talking about the non-terminal part, we're talking about the right-hand side contain a single non-terminal. Okay. So I hope the meaning of unit protection, each and everyone is clear. Now, take an example to solve this problem. Uh, The different rules are S tends to XY, right? And X tends to small a, right? And Y tends to capital Z or B, right? Z tends to M, okay? M tends to N, and N tends to A, right? These are the protection rules, or these are the, right? How to remove the unit protection? To first step, we find out the unit protection. So in first step, we find out the unit protection. This is unit protection, right? One. This is unit protection. Two. And this is also a unit protection. Three. So we write it down unit protection. Unit protection. Okay. So unit protection are Y tends to Z. Okay. Now Z tends to M and M tends to N, right? Now, our objective is that we reduce this non-terminal with the help of some terminal symbol. So we go through the all protection and find out the one uh, second step, right? One protection is lie N tends to a small a. So we can substitute M tends to N with the help of N tends to A. So in resultant part, we get M tends to A. So this unit protection M tends to N is replaced with M tends to A. So the resultant protection set M tends to N is replaced with M tends to A. So one part is solved. Now we take care for the second protection. This protection is solved, right? M tends to N, right? This clear. This protection is solved. M tends to N. Now we take care for Z tends to M. Z tends to M. So M tends to A. We already discovered M tends to A. So we put it here Z tends to A. So the resultant part is Z tends to A. So again, this part is reduced with the help of Z tends to A. So this unit production is removed. Now one more unit production that is called Y tends to Z, right? So Y tends to Z, Z tends to A. So we can replace easily Y tends to A. So all the protections, unit protections are replaced with the terminal part. So the resultant part is S tends to XY, right? And X tends to A and Y tends to Z. So Y tends to Z is replaced with Y tends to A. So you write it down Y tends to A, right? Next, Y tends to B. Okay. Remaining Z tends to M. Z tends to M means M की जगह क्या पुट किया हुआ है हमने A. तो Z tends to A, right? M tends to N. M की जगह क्या पुट हुआ है A, right? M tends to A and N tends to A, right? These are the resultant production.
Now we go through all the production and find out some productions are unnecessary, right? This is a part of simplification of grammar, right? What is the meaning of simplification of grammar? If any production that are not used in anywhere, so that is called unnecessary production. So we remove that production in resultant part. So we check x and y तो यूज हो रहे हैं, x and y हमारे पास में सारे यूज हो रहे हैं, बट z, m and n कहीं पे भी यूज नहीं हो रहा है, right? So we easily cut that part and the resultant productions are s tends to xy comma x tends to a, and we combine both the part y tends to a or b, right? So after removal of unit production, the resultant production set are this, right? So first we convert the production rule or grammar without unit production. This is the first part. So we take care for this example how to remove the unit product unit production. सर एक बार फिर से बता दीजिए, सर एक बार फिर से बता दीजिए यूनिट प्रोडक्शन। ठीक है, देखो बेटा, सिंपल सी चीज है, हमारे पास में यूनिट प्रोडक्शन सबसे इजी पार्ट है। यूनिट प्रोडक्शन का बेसिक मीनिंग क्या होता है? हमारे पास में जब भी राइट हैंड साइड में कोई भी एक टर्मिनल सिंबल, केवल सिंगल टर्मिनल सिंबल हो, तो हम उसे यूनिट प्रोडक्शन बोलते हैं। क्लियर? तो हम उस यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। क्लियर? राइट? अगर हम आपसे बोलें कि स्मॉल ए कैपिटल बी आपके पास में लाई कर रहा है, तो दिस इज नॉट अ यूनिट प्रोडक्शन बिकॉज दिस production is combined with terminal and non-terminal, right? We take another example, A tends to B, capital B, small a. So again, this is not a unit production. We're talking about the only one non-terminal symbol in right-hand side, right? So if that type of statements or productions are available in a set of grammar, so how to reduce that? We find out that non-terminal is substitute with some terminal symbol, so we can replace that non-terminal symbol with that terminal symbols, right? Clear? So this is a simple rule for unit production. So first we find out the unit production in given example. So unit productions are y tends to z, this is a unit production, z tends to m, this is a unit production, and m tends to n. So these three are the unit production. So we write it down, these three unit production. Now we find out how to simplify these unit production. Is there any production rule is available? We can substitute and with some non-terminal, and with substitute with some terminal symbol or combination of terminal and non-terminal symbol. So we find out n tends to a. So we can easily remove this part to put the value of n tends to a. So now the resultant product is m tends to a. So this is not a unit production. So our problem is solved. This method is continue for the remaining part, right? So each and every unit production converted into in a similar fashion, y tends to a, z tends to a, and n tends to a, right? Clear? So after that, we write down complete production, right? Without unit production, right? Now we can easily see the production of Z, M, and N are never used in anywhere, right? So these are the unnecessary production. So we can easily remove in a resultant production rule. So these are the this is the answer for the giving production, right? Okay. Now अब आते हैं हमारे पास में, क्लियर है बेटा? यस सर। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट हमारे पास में क्या था? रिमूवल ऑफ नल प्रोडक्शन। रिमूवल ऑफ नल प्रोडक्शन। ओके, अब नल प्रोडक्शन का मीनिंग समझते हैं पहले। सो वी टेक एग्जांपल एस टेंड्स टू कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए, कैपिटल सी। दिस इज अ वन प्रोडक्शन। नाउ we take care for the second production, that is called A tends to small a, capital A, or epsilon, right? We're talking about the null production. So A tends to epsilon, this is called null production, right? B tends to small b, capital B, or epsilon, right? Clear? No. And the last part is C tends to small c. So
in giving set of production rule, we find out two null production. First is A tends to epsilon and second B tends to epsilon. So first we take care for A tends to epsilon, right? We put A tends to epsilon in this production rule, right? This is a method to solve how to remove the null production, right? So substitute the value. First time A, in place of A, we put the epsilon multiply with anything, we get the same thing, BAC, right? This is the first production rule. Or second, if we substitute A in this place, so we find out A, B, and C, right? Okay, clear? Now, third part, if we put the epsilon both the places, so we find out B and C, right? Clear? These are the three possibilities when we put the epsilon in this particular production, right? Clear? Now, second production rule is A tends to A, small a, capital A. So if we substitute epsilon, right? So we find out A tends to a small a, right? There is no another possibilities. So अब अगर हम न्यू प्रोडक्शंस की बात करें केवल इतने पार्ट के लिए, यहाँ पे हमने ए को टेक केयर किया था, राइट? तो हमारे पास में न्यू प्रोडक्शन रूल्स क्या मिले? S tends to A, B, C और B, A, C और B, C, right? This is a one production rule. और हमारे पास में क्या मिला? A tends to A और simple A, right? This is the new production rule. Now, अब हम B को सब्स्टिट्यूट करेंगे इसी तरीके से B एप्सिलॉन को. सो B को हम अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है? देखते हैं प्रोडक्शन. S tends to A, C, right? B को और कहीं सब्स्टिट्यूट करेंगे तो और कुछ वैल्यू हमें मिलेगी नहीं, केवल A मिलेगी, राइट? और अगर हम इसी तरीके से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें S tends to B पे, तो हमें क्या मिलेगा? S tends to small p. सो इट मीन्स अगर हम S के रिजल्टेंट प्रोडक्शंस की बात करें तो हमें क्या मिलेगा? A, राइट? क्लियर? अब और हमारे पास में यहाँ पे ये वाला प्रोडक्शन तो हमें क्लियर है, B और B मिलेगा. बट अब हम इस A में क्या कर सकते हैं? A को फिर से हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एप्सिलॉन. तो हमें क्या मिल जाएगा अगर हम इस पार्ट को समझें? S tends to AAC. तो एक बार A की जगह एप्सिलॉन मिला तो AC मिल जाएगा और दूसरी बार रखेंगे तो हमें केवल क्या मिलेगा? C मिलेगा. सो टू अनदर प्रोडक्शन दैट इज कॉल्ड AC और C. क्लियर? अब हम इन दोनों प्रोडक्शंस को, क्योंकि ये कंबाइंड प्रोडक्शन है, तो हम इन दोनों ये आपके पास में किसके बराबर था? B के बराबर, नॉट A के, राइट? तो अब हम इन दोनों प्रोडक्शंस को एक साथ कंबाइन कर दें तो हमारे पास में हमें क्या मिल जाएगा? कंबाइंड पार्ट मिल जाएगा, राइट? तो सारे प्रोडक्शंस हो गए S tends to this. अब हम इसी पार्ट को और के साथ में भी लिख सकते हैं और हम चाहे तो इस प्रोडक्शन को नीचे भी लिख सकते हैं. थर्ड प्रोडक्शन, फोर्थ प्रोडक्शन, 1, 2, 3 एंड 4. अब अगर आप देखो तो एप्सिलॉन हमारे पास में यहाँ पे इस प्रोडक्शन में कहीं पे भी लाई नहीं कर रहा. अब हम बात करते हैं यूनिट प्रोडक्शन की, तो देखते हैं यहाँ पे यूनिट प्रोडक्शन है? नहीं. यहाँ पे यूनिट प्रोडक्शन है? यस. A tends to capital C. This is called the unit production. तो हम इसे भी रिप्लेस करेंगे, राइट? सो these are the methods how to remove the null production. Okay? सर. हाँ, या टेल मी बेटा. सर इसमें आपने सर A रिप्रेजेंट्स A वेरिएबल A फिर या A किया है, तो सर यहाँ पे अगर जो ओरिजिनल है तो उसमें A रिप्रेजेंट्स कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल A, कैपिटल C, तो उसको भी नहीं लिखेंगे हम? अगर वहां पे अगर A लिया तो उसको भी तो लिखना होगा ना? नहीं, इसको हमने A से सब्स्टिट्यूट किया है क्योंकि हम एप्सिलॉन हटा रहे हैं, राइट? एप्सिलॉन को पुट कर रहे हैं तो A को हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हमारे पास में क्या मिलेगा? राइट? ABC. फिर हमने A को सब्स्टिट्यूट किया तो हमें क्या मिलेगा? BAC. फिर हमने A को दोनों जगह सब्स्टिट्यूट किया तो ये तो समझ गए सर, लेकिन अगर हम लोग ने मैं सब्स्टिट्यूट, वो तो और कंडीशन में आ जाएगा सब्स्टिट्यूट किया है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है सिर्फ सिंगल, जैसे कि अगर इससे वेरीफाई कराएं तो A, B, A, C. आई गॉट योर पॉइंट. हम वो लिखना भूल गए हैं. यहाँ पे एक रिजल्टेंट प्रोडक्शन भी आएगा A, B. ये सर सर यहाँ पे स्मॉल C रहेगा ना सर? ये बेटा कैपिटल C है. हाँ, तो सर स्मॉल C रहेगा, आपको रिमूव करेंगे जब यूनिट प्रोडक्शन, तो
जब नहीं यूनिट नहीं, यहाँ तो सही रहेगा, यहाँ सही है सर। यहाँ पे सही यहाँ है, सही अभी हम यूनिट प्रोडक्शन की बात ही नहीं कर रहे हैं, वी टॉकिंग अबाउट ओनली नल प्रोडक्शन, राइट। सेम एज चीज यहाँ पे भी, तो जब हम कंबाइन करके इस पार्ट को लिखेंगे तो ये ए बी ए सी एक ही बार आएगा, दो बार रिपीट नहीं होगा, राइट। क्लियर है बेटा सबको? क्या एक्सप्लेन अगेन? किसी को अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, हम दोबारा इसे एक्सप्लेन कर दें। सर ये थोड़ा सा पेपर स्क्रॉल कीजिए, लास्ट में लिखा है ये नहीं समझ में आया, जहाँ पे आपने हाथ रखा है। दिस वन? सर नहीं सर, ये इक्वेशन सेकंड के ऊपर, ये s टेंड्स टू a, अच्छा ओके, a चलो c। ठीक है, ठीक है, नो इशू। ठीक है, जिनके भी लिटिल बिट डाउट है हम उसे फिर से क्लियर कर ले रहे हैं, क्योंकि ये पार्ट इम्पोर्टेंट है और हर जगह यूज होना है, तो आपके जो भी डाउट्स हैं आप क्लियर कर लो एक बार में। स्मॉल ए और एप्सिलॉन, राइट। और दूसरा प्रोडक्शन है हमारे पास में बी टेंस टू स्मॉल बी कैपिटल बी और एप्सिलॉन, राइट, और सी टेंस टू। अब हम इस पार्ट को कंबाइंड यूज कर रहे हैं, रिमूवल ऑफ नल प्रोडक्शन एंड रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन, राइट। सो हम पहले क्या करते हैं, कोशिश करते हैं पहले नल प्रोडक्शन रिमूव करें, राइट, और आफ्टर रिमूवल ऑफ नल प्रोडक्शन हम लोग क्या रिमूव करेंगे, यूनिट प्रोडक्शन, राइट। इजी पड़ता है सॉल्व करने के लिए, क्लियर। तो हम सबसे पहले नल प्रोडक्शन रिमूव करते हैं। तो नल प्रोडक्शन का रूल क्या था, जहां पे भी हमारे पास में नल पार्ट आ रहा है, बी टेंस टू एप्सिलॉन एंड ए टेंस टू एप्सिलॉन, दो हमारे पास में नल प्रोडक्शन है एंड बी टेंस टू एप्सिलॉन। सो हम इनकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट, जो भी हमारे पेज पास। इज नॉट विजिबल। सर पेपर थोड़ा सा स्क्रॉल। क्लियर है बेटा, राइट। सो अब हम क्या Yes, sir. करेंगे, इस वाले पार्ट्स को पुट करेंगे, तो हम वन बाय वन पुट करेंगे, हम चाहे तो एक साथ भी पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वी आर बिगिनर्स। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जब हमें चीजें समझ में आ जाएंगी तो आप इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, क्लियर। तो अब हमने सबसे पहले कौन सा प्रोडक्शन रूल लिया, एस टेंस टू ए बी ए सी, राइट, ये पहला प्रोडक्शन रूल था। अब हमने ए को सब्स्टिट्यूट कर दिया एप्सिलॉन से, तो हमारे पास में क्या मिल गया, बी ए सी। अब हमने पहले वाले ए को छोड़ दिया और दूसरे वाले ए में पुट कर दिया, लास्ट में हमने ए और सी पुट कर दिया, ठीक है, सॉरी बी और सी। ये फर्स्ट पार्ट हुआ। अब हम बी के लिए भी काउंट कर लें, अगर सेम प्रोडक्शन को, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना बी के लिए भी। अगर हमने बी के लिए एप्सिलॉन पुट किया तो हमें क्या मिलेगा, ए सी। और फिर अगर हमने ए के लिए एप्सिलॉन पुट किया तो हमें क्या मिलेगा, ए सी, राइट, और फिर हमें क्या मिलेगा, सिंपल सी, राइट। अब हमने डायरेक्ट मेथड यूज किया। सो ये सारे हमारे पास में एस के प्रोडक्शन मिल गए, कंप्लीट हो गया एस का प्रोडक्शन। अब आपके पास में और कोई पॉसिबिलिटीज है, चेक कर लो। इस एस के प्रोडक्शन में ए और बी को सब्स्टिट्यूट करते हुए और कोई पॉसिबिलिटीज आएगी, नहीं, सारी पॉसिबिलिटीज आपने राइट डाउन कर दी। अब हमने नेक्स्ट प्रोडक्शन लिया, ए टेंस टू ए कैपिटल ए, राइट, ये पार्ट हो गया। अब ए की जगह हम एप्सिलॉन सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, स्मॉल ए, कंप्लीट। इसके अलावा और कोई प्रोडक्शन रूल इसमें नहीं आ सकता। थर्ड वन, बी टेंस टू स्मॉल बी कैपिटल बी, और बी की जगह हम एप्सिलॉन पुट कर सकते हैं, तो पहला प्रोडक्शन तो स्मॉल बी कैपिटल बी, और जब हमने एप्सिलॉन पुट कर दिया तो आफ्टर दैट बी, एंड द लास्ट पार्ट इज सी टेंस टू सी, ये ऑलरेडी हमारे पास में गिवन। अब अगर हम इस प्रोडक्शन में देखें तो हमारे पास में मेजर प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास में एक यूनिट प्रोडक्शन लाई कर रहा है। कौन सा यूनिट प्रोडक्शन लाई कर रहा है, एस टेंस टू कैपिटल सी। तो क्या हम इसे रिमूव कर सकते हैं, यस, कैपिटल सी टेंस टू, क्या दिया हुआ है, कैपिटल सी टेंस टू स्मॉल सी, so we can easily replace with small c, right। तो अब हमारे पास में क्या हो गया, ये पूरा प्रोडक्शन चेंज हो गया। अब हमारे पास में क्या मिला, s टेंस टू a b a c, राइट, b a c a b c, ओके, b c डबल a c a c, और अब ये जो c है ये स्मॉल c, राइट, क्लियर, एंड रिमेनिंग प्रोडक्शंस आर सेम एस, ओके। अब अगर हम बात करें आपसे, तो क्या ये आपके पास में चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है, एनीवन गिव मी द आंसर। गिविंग प्रोडक्शंस आर चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, यस या नो? नहीं सर, नहीं है। नहीं है, ओके। कितने लोगों को याद था चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म था क्या, कल हम लोगों ने थ्योरेटिकल पार्ट में डिस्कस किया था, व्हाट इज द चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में केवल आपके पास में दो तरीके के प्रोडक्शंस लाई कर सकते हैं, या तो आपके पास में क्या था, देखो, ए टेंड्स टू स्मॉल है या ए टेंड्स टू बीसी, राइट। तो अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट करें तो हमारे पास में देखो, ये प्रोडक्शन अगर हम बोले तो चॉम्स्की हायरार्की में, ये प्रोडक्शन बोले तो चॉम्स्की हायरार्की में है, राइट। हम इसको थोड़ा समझने के लिए लिखते हैं एस टेंस टू बीसी,
ये पार्ट सॉल्व है। S टेंड्स टू AC, ये भी चौमस की हायरार्की में। S टेंड्स टू स्मॉल c, ये भी चौमस की हायरार्की में। ये तीनों पार्ट चौमस की हायरार्की में है। अब अगर हम A की बात करें तो A टेंड्स टू स्मॉल a चौमस की हायरार्की में है, लेकिन A चौमस की हायरार्की में नहीं है। B टेंड्स टू स्मॉल b चौमस की हायरार्की में। C टेंड्स टू स्मॉल c चौमस की हायरार्की में। अब रिमेनिंग पार्ट्स को हमें क्या करना पड़ेगा, तो जब हम कन्वर्जन ऑफ चौमस की हायरार्की की बात करते हैं तो हमें क्या करना है, रिमेनिंग प्रोडक्शंस को भी चौमस की हायरार्की में कन्वर्ट करना है, राइट। तो जब भी हमें कन्वर्जन दिया जाता है, कल हम लोगों ने कन्वर्जन पढ़ा था ना, कन्वर्जन ऑफ CFG टू CNF, राइट। तो हमने स्टेप पढ़े थे, तो स्टेप 2 स्टेप 3 तो अब हमें समझ में आ गया जो इंपॉर्टेंट था। अब हम स्टेप 1 से लेके सारा पार्ट सॉल्व करेंगे। तो वी टेक अ वन एग्जांपल फॉर दिस पर्पस, राइट। अब हम लोग समझ रहे हैं कन्वर्जन ऑफ CFG टू conversion of CFG to CNF, right? Clear? Sure. We take an example. S tends to ASA, okay, right? और AB। क्योंकि हमें सारे पार्ट समझने हैं, तो पहला पार्ट क्या था रूल में, अगर S आपके पास में स्टार्टिंग सिंबल राइट हैंड साइड में ऑकर कर रहा है तो हमारे पास में एक रूल था ना, तो हम उस रूल को भी अप्लाई करेंगे। सेकंड प्रोडक्शन है आपके पास में A टेंड्स टू कैपिटल B और S, राइट। एंड थर्ड रूल है B टेंड्स टू B और एप्सिलॉन, ठीक। अब देखो, अगर हम इन प्रोडक्शंस को देखें तो हमें यहाँ पे बड़ी इजीली दिख रहा है, यहाँ यूनिट प्रोडक्शन भी है, यहाँ नल प्रोडक्शन भी है, और यहाँ S राइट हैंड साइड पे भी लाई कर रहा है। तो जब S राइट हैंड साइड पे लाई करता था तो हमारे पास में रूल क्या था, हम स्टेप 1 में क्या करते थे, एक नया प्रोडक्शन ऐड S करते not थे, to replace. राइट। इट्स रिप्लेस विद S डैश। आप किसी भी वेरिएबल से रिप्लेस कर सकते हो, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, यू रिप्लेस S डैश, राइट। सो हमने क्या यूज किया, S की जगह हमने S डैश लिख दिया। तो अब इसको करने से है क्या, बहुत टाइम हमारे दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि सर ये क्यों कर रहे हैं। तो हमारे पास हमारा रूल क्या था कि जो हमारे पास में स्टार्टिंग सिंबल है वो कभी भी राइट हैंड साइड पे ऑकर नहीं हो, लेकिन जो गिविंग प्रोडक्शन रूल है उसमें स्टार्टिंग सिंबल आपके पास में कहाँ ऑकर हो रहा है, राइट हैंड साइड पे। तो हमने इस पर्टिकुलर पार्ट को करेक्ट करने के लिए हमने क्या किया, एक नया प्रोडक्शन ऐड कर दिया S डैश। अब S डैश कहीं पे भी राइट हैंड साइड पे नहीं होगा, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो स्टेप 1 क्लियर हुआ आपको, राइट। अब स्टेप 1 के बाद में आपके पास में जो रिमेनिंग प्रोडक्शन है वो एज इट इज लिख दो, क्योंकि एग्जाम में आपको सारे स्टेप्स लिखने होते हैं, राइट। Remaining productions A tends to B or S, and the last one B tends to B or epsilon. That is step 1 कंप्लीट हो गया। नाउ स्टेप 2 की बात करते हैं। स्टेप 2 में हमने आपसे पहले बोला था कि हम लोग क्या करते हैं, नल प्रोडक्शन पहले हटाते हैं, क्योंकि नल प्रोडक्शन हमारे पास में कॉम्प्लिकेटेड होता है, राइट। तो पहले हम क्या करेंगे, नल प्रोडक्शंस को रिमूव करेंगे। सो नल प्रोडक्शन हमारे पास में इस पर्टिकुलर पार्ट में कहाँ आ रहा है, देखो B टेंड्स टू एप्सिलॉन, केवल इसी जगह है और तो कहीं नहीं है। तो अब अगर हमें नल प्रोडक्शन यूज करना है तो B टेंड्स टू एप्सिलॉन, और कहीं कुछ आ रहा है देख लो, और कहीं नल प्रोडक्शन है, No, sir. ओके ठीक है। चलो, सो अब हम इसको रिमूव करते हैं, कहीं कोई एक चलो देखते हैं, एप्सिलॉन होना चाहिए, कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है, ओके जस्ट अ मिनट। ये A टेंड्स टू BS नहीं है, A टेंड्स टू एप्सिलॉन, ठीक है, ओके क्लियर। चलो, अब हमारे पास में दो एप्सिलॉन प्रोडक्ट मिले, A टेंड्स टू एप्सिलॉन एंड B टेंड्स टू एप्सिलॉन। अब अगर हम सॉल्व करें तो S डैश टेंड्स टू S में कुछ चेंज होगा नहीं, ये प्रोडक्शन अब हम डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं, तो अब हम लोग समझ चुके हैं, तो हमें समझ में आ जाएगा क्लियर, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। लेकिन इस प्रोडक्शन में चेंज होगा क्योंकि इसमें A और B के ऑकरेंस आ रहे हैं, राइट। तो हमने इस प्रोडक्शन को चेंज किया S डैश टू। अब हमारे पास में अगर हम ASA तो पहले लिख लेंगे डायरेक्टली, राइट, हम केवल इस वाले पार्ट को फोकस कर रहे हैं। अब ASA में अगर हमने A की जगह एप्सिलॉन पुट किया, राइट, तो हमें क्या मिलेगा, A की जगह अगर हमने एप्सिलॉन पुट किया तो हमें क्या मिलेगा, SA। फिर अगर हमने पहले वाले की जगह सेकंड वाले उसमें पुट किया तो हमें क्या मिलेगा, AS। यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है, राइट। इसके बाद अगर हमने दोनों जगह पुट किया तो हमें क्या मिलेगा, S मिलेगा। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है इस S टेंड्स टू ASA में, चेक करो, बताओ और कोई पॉसिबिलिटी है इसमें, नहीं।
अब दूसरा प्रोटेक्शन हमारे पास में क्या था, एस टेंस टू स्मॉल ए कैपिटल बी। सो स्मॉल ए कैपिटल बी तो एज इट इज लिख लूं, और बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन पुट कर सकते हैं, तो हमने स्मॉल ए। सो दीज आर द रिजल्टेंट प्रोटेक्शन फॉर एस आफ्टर रिमूवल ऑफ नल प्रोटेक्शन, राइट। एस सॉल्व हो गया। अब हमारे पास में बचे हुए प्रोटेक्शंस कौन से थे, ए टेंस टू बी, राइट। तो हमने ए टेंस टू बी लिख दिया डायरेक्ट। यहाँ पे नल प्रोटेक्शन हम हटा चुके हैं क्योंकि ये एप्सिलॉन को हम यूज कर चुके हैं, राइट। तो ये पार्ट आपके पास में कट हो गया, राइट। अब आपके पास में क्या बचा हुआ है, इसमें एक और प्रोटेक्शन ले लो, बी टेंस टू एस बी ले लो, राइट। ओके, बी टेंस टू, ए टेंस टू है, यहाँ पे एस वन ले लेते हैं, राइट। ओके, सो ए टेंस टू हमारे पास में बी मिल गया, और क्या मिल गया हमें, ए टेंस टू एस मिल गया। क्लियर। इस वाले पार्ट में एप्सिलॉन हट गया, यहाँ से हमारे पास में हमने एप्सिलॉन हटाया तो हमें क्या मिल गया, बी टेंस टू स्मॉल बी। क्लियर। सो आफ्टर रिमूवल ऑफ नल प्रोटेक्शन हमारे पास में जो रिजल्टेंट सेट है वो ये मिल गया। अब देखते हैं थर्ड वाले पार्ट में हमें क्या करना था, यूनिट प्रोटेक्शंस को रिमूव करना था, राइट। सो अब आप ट्राई करो यूनिट प्रोटेक्शन को रिमूव करने के लिए। हम फर्स्ट पार्ट आपके पास में सॉल्व करते हैं। यूनिट प्रोटेक्शन हमारे पास में इस वाले पार्ट को हमें रिमूव करना है, राइट। सो एस टेंस टू, अब पहले हम यूनिट प्रोटेक्शन छांट लेते हैं, चलो। एस टेस्ट टेंस टू एस, फर्स्ट यूनिट प्रोटेक्शन। सेकंड एस टेस्ट, यहाँ पे हमारे पास में क्या मिलेगा, एस टेंस टू एस, राइट। एक ये यूनिट प्रोटेक्शन है, और क्या है आपके पास में, ए टेंस टू बी यूनिट प्रोटेक्शन है, और कोई यूनिट प्रोटेक्शन है, देखो ए बराबर है सर। ए बराबर एस है। 4 यूनिट प्रोटेक्शन है आपके पास में। क्लियर। अब इन चारों यूनिट प्रोटेक्शन को आपको सॉल्व करना है। सो ट्राई ऑन योर बेसिस, एक बार आप अपने बेसिस पे ट्राई करो, एंड देन वी विल डिस्कस कि आपके पास में कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ओके ओके, सो अब नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्टेप 3। स्टेप 3 में हम लोग क्या रिमूव कर रहे थे, यूनिट प्रोटेक्शंस। तो जब हम यूनिट प्रोटेक्शंस की बात कर रहे हैं तो इन earlier phase we find out all the unit protections, so we replace unit protection one by one, right? So what are the unit protection, we write it down again. S test to S, this is the first. Second S test, S tends to S. Third one A tends to B, and the last one A tends to S. These are the 4 unit protection. So सबसे पहले हम किसको रिमूव कर रहे हैं, हम लिख लेते हैं समझने के लिए, removal of S test, right? Clear? So removal of S test tends to S. हम इस वाले प्रोटेक्शन को पहले यूज कर रहे हैं, ठीक है। So removal of S test tends to S को अगर हम रिमूव करें तो हमारे पास में क्या यूनिट प्रोटेक्शन है, अगर हम चेक करते हैं, आप सबके पास में यूज कॉपी होगा, S tends to A है, तो S tends to A गिविंग है, देखो S tends to A, तो हम क्या लिख सकते हैं, S test tends to A लिख सकते हैं, राइट। Clear? So we remove this protection and find out S test tends to A, right? Clear? इसके बाद हमारे पास में क्या मिला हुआ था, इसके बाद हमारे पास में प्रोटेक्शन था, रिमेनिंग सारे प्रोटेक्शन हमारे पास में एज इट इज हम लिख सकते हैं, या हम इसमें चेंज करेंगे। Give me the answer. See, B tends to B. Sir, the right side of the page is not visible. Okay, अब क्लियर है बेटा? Yes, sir. ओके, सो अब हमारे पास में सबसे पहला पार्ट समझना, हमने पहले वाले पार्ट का तो यूनिट प्रोटेक्शन रिमूव कर दिया। क्लियर। हमारे पास में क्या हुआ, जो हमारे पास में सबसे पहले हम लोग चलो और इजी पार्ट में लेते हैं, हम सबसे पहले एस टेस्ट टेंस टू एस को रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। ये सबसे इजी पार्ट है। एस टेस्ट टेंस टू एस में हमारे पास में जो प्रोटेक्शन है वो हमारे पास में क्या है, सॉरी हमने गलत लिखा हुआ था यहाँ पे, हम इस प्रोटेक्शन को यूज कर रहे हैं, एस टेंस टू एस, राइट। सो अब अगर हम इस प्रोटेक्शन को यूज करें तो हमारे पास में क्या है, एस टेंस टू ए गिविंग है, राइट। सो हम इस प्रोटेक्शन किससे रिप्लेस कर सकते हैं, एस टेंस टू ए से। तो अब हमारे पास में जो रिजल्टेंट प्रोटेक्शंस मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, राइट इट डाउन करते हैं, एस डैश टेंस टू, राइट, एस, ओके। तो इस पार्ट को हम रिमूव कर सकते हैं, एस की जगह हमने क्या लिख, नहीं अभी इस पार्ट को हम रिमूव नहीं कर सकते, दैट इज राइट, सॉरी
एस डैश टेंस टू एस, राइट। हमने जिस पार्ट को रिमूव किया हम उस पार्ट को लिखते हैं एस डैश टेंस टू ए एस ए, राइट, एस ए, ओके, ए एस, और इस पार्ट को हमने रिमूव किया था, यहाँ पे एस की जगह क्या मिल गया था, ए मिल गया था, सो वी राइट इट डाउन ए इज हियर, राइट। और फिर हमारे पास में क्या मिला, ए बी। अब दो ए हम दोबारा तो लिखेंगे नहीं, लास्ट वाले में हमें क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है, दिस वन, तो हम इस ए को हटा देते हैं और इस ए को हम यहाँ पे लिखा रहने देते हैं, क्योंकि एक प्रोडक्शन रूल आपके पास में एक ही बार लिखते हैं, राइट। हम दोबारा उसे रिपीट अगर हो रहा है तो उसको एलिमिनेट कर देते हैं। तो ये पहला पार्ट आपके पास में कंप्लीट हुआ। रिमेनिंग पार्ट में देखते हैं हमारे पास में क्या प्रोडक्शंस थे, ए टेंस टू बी, राइट, और आपके पास में क्या था, ए टेंस टू बी, राइट, कैपिटल बी, सॉरी इसको हमें रिप्लेस करना है, ये तो हमारे पास में रिप्लेस होगा। बी टेंस टू हमारे पास में क्या था, स्मॉल बी, राइट, ये प्रोडक्शन था। और लास्ट प्रोडक्शन हमारे पास में क्या था, ए टेंस टू बी एस, राइट, ए टेंस टू बी एस, क्लियर। अब आपने केवल किस पार्ट को रिमूव किया है, एस टेंस टू एस को, राइट, एस टेंस टू एस। जब आपने इसको रिमूव किया तो हमारे पास में क्या प्रोडक्शन रूल मिले, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये हमारे पास में 4 प्रोडक्शन रूल हमें मिले, क्लियर। अब हम किसको रिमूव कर रहे हैं, रिमूवल ऑफ एस डैश टेंस टू एस को। अब हम किसको रिमूव कर रहे हैं, एस डैश टेंस टू एस को, राइट। तो देखो एस डैश टेंस टू एस गिविंग है और हमारे पास में क्या है, एंड हम बोल सकते हैं एस टेंस टू ए है, राइट, क्लियर। सो हमारे पास में क्या हो सकता है, एस डैश टेंस टू ए हो सकता है, क्लियर, विजिबल है बेटा, राइट, ओके। ये पार्ट सबको क्लियर हो रहा है। इसी तरीके से अगर हम आपसे बोले एस डैश टेंस टू, ठीक है, एंड एस टेंस टू ए एस ए है, सो हमारे पास में क्या हो सकता है, एस टेंस टू ए एस ए एंड सो ऑन, राइट, यही होगा आपके पास में। मीनिंग क्लियर हो रहा है, ओके। सो अब हमारे पास में अगर हम इस पार्ट को सब्स्टिट्यूट करें तो एस डैश टेंस टू हमें पास क्या मिल गया, स्मॉल ए और ए बी, राइट, अगर हम पुट करते जाएं तो, राइट, इसके बाद हमें क्या मिलेगा, बी ए, ओके, ए एस और ए एस ए, राइट, क्लियर, ए बी है, ठीक है, ए बी हो गया, राइट, ए एस हो गया, ओके, क्लियर, एस ए है, सॉरी, राइट, क्लियर। सो ये हमारे पास में एस डैश की वैल्यू को फाइंड आउट करने पे मिला। अब एस को अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एस के करस्पॉन्डिंग हमारे पास में क्या मिलेगा, तो एस के करस्पॉन्डिंग हमें ए मिल गया, ए बी मिल गया, एस ए मिल गया, ए एस मिल गया, राइट, और ए एस ए मिल गया। अब देखो प्रॉब्लम क्या थी, एस डैश टेंस टू एस है, तो एस की जगह जो भी वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करोगे वो सारी एस डैश पे अपने आप लाई कर जाएगी, क्यों, क्योंकि एस डैश टेंस टू एस है, तो अगर आपने बोला एस टेंस टू ए है तो एस डैश टेंस टू ए होगा, एस डैश टेंस टू एस रखोगे तो आपके पास में क्या हुआ, ए एस ए हुआ, राइट, और फिर आप इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये भी इसके इक्विवेलेंट हुई, तो आप सारी वैल्यूज को वन बाय वन सब्स्टिट्यूट करते जा रहे हो, राइट। तो ये आपके पास में रिजल्टेंट पार्ट हुआ। रिमेनिंग आपके पास में बी टेंस टू बी एज इट इज रहा एंड आपके पास में ए टेंस टू बी और एस रहा। अब हम किसको रिमूव करेंगे, रिमूव ऑफ ए टेंस टू बी को रिमूव करते हैं, राइट। सो ए टेंस टू बी को रिमूव करने का मीनिंग क्या हुआ आपके पास में, ए टेंस टू बी है, राइट, एंड बी टेंस टू स्मॉल बी है, राइट। सो आपके पास में क्या हो जाएगा, ए टेंस टू स्मॉल बी हो जाएगा, राइट। अब अगर हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास में क्या मिलेगा, एस टेंस टू ए बी, राइट, एस ए एस, ओके, राइट, और ए एस ए, क्लियर। नाउ एस टेंस टू copy as it is a b, right, s a s a s a, now b tends to b। अब इस पार्ट को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, a tends to, अब आपके पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, b, राइट, और आपके पास में s, राइट, क्लियर, ओके। अब हमारे पास में लास्ट प्रोडक्शन क्या बचा जिसको हमें रिमूव करना है, रिमूव ऑफ a tends to s, राइट। अब हमें इसे रिमूव करना है तो हमें a tends to s है, राइट, एंड
S टेंस टू हमारे पास में क्या है, स्मॉल ए, सो हम क्या बोल सकते हैं, A टेंस टू हमारे पास में क्या मिलेगा, स्मॉल ए, राइट। और हम क्या बोल सकते हैं, A टेंस टू S है एंड S टेंस टू स्मॉल a कैपिटल B है, सो हमें क्या मिल जाएगा, A टेंस टू स्मॉल a कैपिटल B। अब तो राइट क्लियर। सो अब हम इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, S टेंस टू A, AB, SA, AS, राइट, और ASA, ये तो एज इट इज कॉपी हो गया, राइट। फिर S टेंस टू A, AB, SA, AS, राइट, और ASA, एज इट इज कॉपी। नाउ अब हमारे पास में B टेंस टू B एज इट इज लिख देते हैं और A के लिए हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो A के लिए पहला B हो गया, S की जगह क्या आ सकता है, ASA आ सकता है, और क्या आ सकता है, AB आ सकता है, और क्या आ सकता है, AS आ सकता है, और क्या आ सकता है, SA आ सकता है, एंड A आ सकता है। सो दीज आर द रिजल्टेंट प्रोडक्ट्स। क्लियर। सो अब जो आपके पास में प्रोडक्शन मिले हैं वो ये पार्ट मिला है। क्लियर, मीनिंग क्लियर हुआ। तो आपने स्टेप 3 को कंप्लीट करने के बाद में जो प्रोडक्शन आपको मिले वो क्या मिले, ये। अब ध्यान दो, जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, क्या इसमें सारे प्रोडक्शन जो हैं वो आपके पास में चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है? नहीं, ये है, ये नहीं है, ये है, ये है, ये नहीं है। तो जो नहीं है उनको हम थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं, ये नहीं है, राइट, ये नहीं है, ये नहीं है, राइट, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, राइट, रिमेनिंग है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। हमारे पास में टोटल 6 प्रोडक्शंस हैं जो हमारे पास में अभी भी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, राइट। सो अब इन प्रोडक्शंस को हम कैसे कन्वर्ट करें चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में, राइट। सो अब हमारे पास में इस चीज को समझते हैं। तो स्टेप 4 जिसको बोलते हैं हम लोग, राइट, फोर्थ स्टेप। तो हमारे पास में कौन कौन से प्रोडक्शन नहीं है, हम लिख लेते हैं। S डैश टेंस टू ASA, राइट, और S टेंस टू ASA, राइट। हम पहले इनको टेक केयर कर लेते हैं, और A टेंस टू ASA, राइट, यही पार्ट है। तो हम इनको चेंज कैसे करें, राइट। तो हम एक प्रोडक्शन ले लें, X टेंस टू, सिंप्लीफाई समझना, SA, X टेंस टू हमने SA मान लिया तो हम, या AS मान लिया तो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना किसी भी साइड से। हम इसे क्या लिख सकते हैं, अगर हम X टेंस टू SA मान लेते हैं तो हम सारी जगह क्या पुट कर सकते हैं, X पुट कर सकते हैं। तो रिमेनिंग प्रोडक्शन देखो क्या हो जाएंगे, S डैश टेंस टू AX, राइट, AB, A, राइट, AS एंड SA। सॉल्व हो गया पहला वाला पार्ट। सेकंड पार्ट यूज करते हैं, ये भी AX हो जाएगा, AB, राइट, A, AS और SA। क्लियर। थर्ड वाले पार्ट में भी आपने AX आ जाएगा, राइट, AB, A, AS, राइट, SA और B आ गया, राइट। एंड द लास्ट आपके पास में B टेंस टू B, और आपने एक नया प्रोडक्शन जो बनाया था उसको भी लिख दिया, SA। अब आप देखो, क्या यहाँ पे आपके पास में सारा फॉर्म चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है? नहीं, अभी भी आपके पास में एक फॉर्म ऐसा है जो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। वो कौन से हैं आपके पास में, लिख लेते हैं। S डैश टेंस टू स्मॉल a कैपिटल B, S टेंस टू, तो ये स्टेप 5 कहलाता है, राइट। S टेंस टू स्मॉल a कैपिटल B, राइट, और A टेंस टू स्मॉल a कैपिटल B। अब हम इसमें भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कैसे सब्स्टिट्यूट करें, राइट, हम इस वाले पार्ट में, राइट, हम एक नया वेरिएबल का क्रिएट कर लेते हैं और हम मान लेते हैं y टेंस टू स्मॉल a, राइट। तो हम y टेंस टू स्मॉल a सारी जगह पुट कर सकते हैं। तो देखो, S टेंस टू AX, इस वाले पार्ट में कोई दिक्कत नहीं थी। अब हमारे पास में स्मॉल a की जगह हमने क्या पुट कर दिया, कैपिटल Y। सो YB हो गया, A, AS एंड SA। अब देखो सारे प्रोडक्शन आपके पास में क्या है, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है। S टेंस टू AX, YB, A, AS, SA, right? Next, A tends to AX, right? YB, okay? A, AS, SA और B, right? B tends to small b. लास्ट प्रोडक्शन क्या था, X, सेकेंड लास्ट प्रोडक्शन X tends to SA, ठीक है। एंड नया प्रोडक्शन क्या हुआ, Y tends to A। अब आपके पास में जो ये ग्रामर है, ये आपके पास में किसमें है, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में। इज दैट क्लियर, राइट। सो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, वन टाइम में जब आप सॉल्व करते हो, क्लियर। जो मेन पार्ट था वो आपके पास में क्या था, हमारे पास में यूनिट प्रोडक्शन और रिमूवल। अगर ये दो चीजें आपको क्लियर हैं,
सो इस पार्ट में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, आपको केवल क्या करना है, वेरिएबल्स को सब्स्टिट्यूट करना है, राइट, विथ सम अदर वेरिएबल, जिससे आपके पास में या तो वो टर्मिनल से सब्स्टिट्यूट होगा या नॉन टर्मिनल से सब्स्टिट्यूट होगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ योर गैस आपको उसे चेक करना है कि either you want to substitute that production with the help of terminal or you want to substitute that particular production with non-terminal, right? So as per your convenience you can use, right? So at the end you find out each and every production in the form of Chomsky normal form. Chomsky normal form में किस तरीके के प्रोडक्शन होते हैं, या तो ये होगा या तो आपके पास में ये होंगे, राइट? सो इस तरीके के आपके पास में सारे फॉर्म्स आ रहे हैं, तो ये आपके पास में Chomsky नॉर्मल फॉर्म, राइट? और जो हमें शुरू में ग्रामर दी थी वो हमारे पास में क्या थी, CFG थी। कैसे मालूम चल रहा है CFG थी? तो अगर आप लेक्चर पहले के रिवाइज करोगे तो CFG के रूल्स क्या थे, तो आपके पास जो ग्रामर गिविंग थी, जस्ट अ मिनट, राइट, वो आपके पास में CFG थी या नहीं थी उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये ग्रामर थी हमारे पास में, राइट, ओके, नहीं ये ग्रामर नहीं थी, राइट, ये था ग्रामर, ये थी आपके पास में। सो ये ग्रामर आपके पास में कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है या नहीं है? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का रूल क्या था, राइट हैंड साइड पे आपके पास में एक ही टर्मिनल सिंबल्स होना चाहिए, तो देखो एक ही नॉन टर्मिनल सिंबल आपके पास में राइट हैंड साइड पे है, ये आपके पास में CFG का रूल था। सो CFG आपके पास में फॉलो कर रही थी। इस CFG को आपने किस में कन्वर्ट किया, CNF में। कैसे कन्वर्ट किया, 4 स्टेप्स आपके पास में प्रॉब्लम्स थी। पहला स्टेप क्या था, राइट हैंड साइड पे अगर आपके पास में स्टार्टिंग सिंबल आ रहा है तो यू रिप्लेस दैट प्रोडक्शन विद द सब्स्टिट्यूट पार्ट, राइट, एस डैश टेंड्स टू एफ। इसके बाद आप क्या करते हो, रिमूवल यूनिट प्रोडक्शन हटाते हो, राइट, नल प्रोडक्शन हटाते हो, पहले नल फिर यूनिट, एंड देन आपके पास में हम क्या करते थे, जो भी हमारे पास में वैल्यूज थी, क्लियर, उनको हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं किस फॉर्म में, जिस फॉर्म में हमें उसे कन्वर्ट करना होता है। अगर आपके पास में B1C के फॉर्म में, यानी आपके पास में अगर हम स्मॉल b कैपिटल B, जैसे हमारे पास में यहाँ पे गिविंग था, यहाँ पे हमारे पास में सिंबल्स क्या थे, इसका 4 देखते हैं, राइट, यहाँ पे हमारे पास में प्रोडक्शंस क्या थे, 3 पार्ट थे, तीनों नॉन टर्मिनल थे, राइट, सॉरी, राइट। सो इन नॉन टर्मिनल्स को हमें क्या करना था, इन 2 नॉन टर्मिनल्स को मिला के हमने एक सिंगल नॉन टर्मिनल बना दिया, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। नेक्स्ट वाले पार्ट में हमारे पास में क्या था, एक हमारे पास में टर्मिनल सिंबल प्रॉब्लम कर रहा था, तो इसको करस्पॉन्डिंग हमने एक नॉन टर्मिनल सिंबल का प्रोडक्शन रूल ऐड कर दिया, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, राइट। सो आई होप all of you clear how to handle CFG, right, convert into CNF form, right, clear है?